In the name of Allah, who is the merciful and the beneficent. Assalamu alaikum students. Hope you are perfectly alright, and so far as your exams are concerned, you are doing well. If you are not doing well, then you must do it. Okay, today we are going to start poem New Year Resolutions. It is written by Elizabeth Saville. Firstly, I would like to introduce Elizabeth Saville. She was born in 1815 in England and died in 1906 in England. Her occupation was that she was a writer. Her nationality was English. So far as period is concerned, she was related to the 19th century, and so far as genre is concerned, she was associated with children's literature. So she has written the poem New Year Resolutions as well. Now we will discuss about the text of this poem. Okay, now you can see here the images, the meditation, the postures, the images which are related to the meditation. Actually, the theme of this poem is that it teaches us to be morally good and spiritually purified. We must learn that self-analysis is the key to human progress. And we can progress and we can conquer our inner self only if we have the courage to face reality. Actually, the knowledge of one's own reality is the first step to become a better human being. If one has the courage to take this first step, the rest of the journey becomes easy. So there is need to self-analysis. This is not a poem on the surface level. Here just we will discuss it, and after that we prepare it for the exams, and after that we forget it. No, it also gives us the lessons to analyze how we are living, in what activities we are involved, whether we should involve in those activities or we should leave them. तो क्या है कि यहाँ पे एलिज़ाबेथ सेवल जो हैं वो इस पोएम में 3 प्रॉमिसेस करती हैं, 3 वादे करती हैं। किससे करती हैं? खुद से करती हैं। ये पोएम हमें बताती है कि हमें ज़िंदगी के गहरे समंदर में देखना है, इसमें डूब जाना है और अपने मकसद हयात को हासिल करना है। राइटर जो है यहाँ पे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार करती है, ठीक है। एक्चुअली वो चाहती है कि मैंने हकीकत की दुनिया में रहना है अब, और ख़ुद को जो है इम्प्रूव करना है। जो ज़िंदगी गुजर गई सो गुजर गई, लेकिन अब जो है राइटर ये चाह रही हैं कि वो अपने आमाल और अपने ख़यालात को जो है वो पाकीज़ा बना सकें। तो हमें बेसिकली पोएम ये आइडिया देती है कि इंसान को अखलाकी तौर पे बहुत अच्छा और रूहानी तौर पे पाक साफ़ होना चाहिए, और ये कि हमें अपनी ज़ात का तजज़िया करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसानी तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने माजी को देखें, हम अपने प्रेजेंट को देखते हुए डिसीजंस लें, और हम डिसीजंस लें कि अब हमें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है। और अगर हमें ये ज़रूरत है, इफ़ वी हैव द करेज टू फेस द रियलिटी, then it becomes easy for us to live a life. We can say to live a better life. Okay, now we would like to see the text. The very first resolution is that the writer said, I will drain long draughts of quiet as a purgation. मैं पी जाऊंगी लंबे घूंट खामोशी के, बातनी पाकीज़गी के लिए, बातनी ततहीर के तौर पे। ओके, हियर द वर्ड इज़ ड्रेन। ड्रेन मीन होता है पी जाना, ड्राफ्ट मीन घूंट, एंड क्वाइट मीन खामोशी, एंड पगेशन मीन रूहानी तज़किया करना, ठीक है। तज़किया जो है तज़किया करना, तज़किया
जो है हम पाकीज़गी को कहते हैं। तो यहाँ पे राइटर एक्चुअली कह रही है कि खामोशी के घूंट पीने का मतलब यहाँ पे है कि सब्र करूँगी मैं, बर्दाश्त करूँगी मैं, ठीक है, और ख़ामोश रहूँगी। ज़्यादा वक्त जो है वो ख़ामोश रह के गुजारूँगी और ऑब्ज़र्व करूँगी। जब हम खामोश रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम चीज़ों को, सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जब हम सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो देन हमारे माइंड में आता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, इफ़ वी कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, then it will be easy for us to decide that what activities we should adopt for the betterment of ourselves and for others. तो राइटर यहाँ पे फर्स्टली यही कह रही है दैट शी वुड रिमेन साइलेंट इन ऑर्डर टू प्योरीफाई हर डेड सोल, कि वो अपनी रूह की पाकीज़गी के लिए खामोश रहेगी। ओके, नाउ वी वुड सी द नेक्स्ट लाइन्स. Okay, again she is saying, this is the second resolution of the writer. Remember twice daily who I am. Remember twice daily who I am. मैं याद करूँगी दिन में 2 बार कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही की बात हो रही है कि वो दिन में, राइटर कह रही है कि मैं 2 बार इस बात को सोचूंगी, खुद को रियलाइज़ कराऊंगी कि मैं कौन हूँ। ओके, तो मैं कौन हूँ से हमें क्या समझ आता है, ज़िंदगी का मकसद, कि अगर मैं जो है मुझे पैदा किया गया है, इस कायनात में भेजा गया है, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो मकसद हयात को पहचान लेना, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना और फिर खुदा को पहचान जाना। तो खुदा को पहचानना ही एक्चुअली खुद को पहचानना है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, कायनात क्यों वजूद में आई, और मेरी ज़ात इसमें क्या है, मुझे किस लिए भेजा गया, मेरा क्या मकसद, क्या है मेरा इस दुनिया में आने का। तो ये जब हम इन सब बातों पे फोकस करते हैं तो देन वी कैन बी एबल टू बी अ बेटर पर्सन इन द सोसाइटी। तो अब राइटर जो है वो साल के स्टार्ट में ही जो है वो खुद से ये प्रोमिसेस कर रही है कि मैंने अब लाइफ कैसे गुजारनी है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, नो दाई सेल्फ, खुद को पहचान लेना। सी द नेक्स्ट लाइन्स. The third resolution starts, we lie o' nights in the bony arms of reality and be comforted. We lie o' nights in the bony arms of reality and be comforted. मैं रातों को लेटूंगी हड्डियों भरे सख्त बाजू पर हकीकत के और पुरसकून रहूँगी। अब यहाँ पे सख्त बाजू जो है हकीकत के, एक्चुअली राइटर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है टू गिव द ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, कि बेजान चीज़ों को इंसानों की क्वालिटीज़ दे देना। अब सख्त बाजू का होना जो है वो किस इंसानों के ही होते हैं ना। तो ये हकीकत जो है, रियलिटी तो एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं है, फिज़िकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं है। तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो अब यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि मैं रात को जब लेटूंगी तो यहाँ पे क्या है, वो अपना खुद मुहासबा करेगी कि जब रात को आप लेटते हो तो सारा दिन आप गुजार चुके हैं, तो हमने क्या किया, हम किस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व रहे, हमने कहाँ पे कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए। जब इंसान अपना मुहासबा करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, तो ऑब्वियसली चांस होता है कि इंसान खुद को अच्छे कामों की तरफ लेके आए और बुरे कामों को छोड़ दे, बुरी आदतों को छोड़ दे। यहाँ पे हकीकत के सख्त बाजू का मतलब ये है कि रियलिटी जो है, हकीकत हमेशा बहुत तल्ख होती है। तो राइटर यहाँ पे कह रही हैं कि मैं हकीकत को जानते हुए, पहचानते हुए, हकीकत को तस्लीम करते हुए ज़िंदगी गुजारूंगी एंड बी comforted, और मुतमईन हो जाऊंगी। Okay, here you can say, face reality as it is, not as it was or as you wish it to be, कि हकीकत को उसी तरह पहचाने
जैसे कि हकीकत है, ना कि उसको हकीकत माने जो कि आपका अपना ज़हन सोचता है या जो आप सोचते हो। एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही ऑब्ज़र्व करें। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस द फर्स्ट रेजोल्यूशन, सेकंड एंड द थर्ड वन बाय वन। ओके, फर्स्ट रेजोल्यूशन इज दैट her first resolution is to purify her soul. She will remain quiet and serious in the coming year. Silence and quietness will purify her soul and will wash away her sins. She uses a simile that she will drink long draughts of quietness. In this way, she gives us an impression that she will not indulge in worldly affairs and will satisfy herself with what nature gives to her. This is really an innovative and untraditional resolution. जी, फर्स्ट रेजोल्यूशन, फर्स्ट प्रॉमिस क्या है राइटर का, वो ये है, एक तो वो अपनी रूह को पाकीज़ा करेगी, वो आने वाले साल में खामोश रहेगी ज़्यादा, ठीक है। और ख़ामोश रहने का मतलब सब्र करना, बर्दाश्त करना और ऑब्ज़र्व करना, मेडिटेट करना, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। तो ये चीज़ उस ना सिर्फ उसकी पाकीज़गी का बायस बनेगी बल्कि उसको गुनाहों से भी दूर करेगी। तो राइटर एक्चुअली यहाँ पे हमें इम्प्रेशन दे रही है कि वो ये दुनियावी मामलात से, बुरे कामों से ख़ुद को दूर करना चाहती है और ख़ुद को सेटिस्फाई करना चाहती है जो नेचर ने उसको दिया है। तो यहाँ पे ये तो एक बिल्कुल ही एक न्यू और अनट्रेडिशनल जो है रेजोल्यूशन है, एक प्रॉमिस है राइटर का ख़ुद से। Okay, now the second resolution is that her second resolution is to remove her all shortcomings and bad things. She says that she will carefully examine her own soul and she will identify and remove her drawbacks and evil things to purify her soul. जी, तो सेकंड उसका रेजोल्यूशन है कि वो अपनी ज़ात में से जो बुराइयां हैं या जो बुरी चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म करेगी और ख़ुद सेल्फ एनालिसिस करेगी, ख़ुद को जानने की, पहचानने की कोशिश करेगी, अपनी रूह को समझेगी। एंड शी विल आइडेंटिफाई एंड रिमूव हर ड्रॉबैक्स एंड इविल थिंग्स टू प्योरीफाई हर सोल, और अपनी रूह और जहन और दिल की और रूह की पाकीज़गी के लिए जो है बुरे कामों को छोड़ देगी। लाइक शी वुड रिमेन साइलेंट इन ऑर्डर टू प्योरीफाई हर सोल। Okay, third resolution is that the poetess makes another resolution that she will face reality. She will be more realistic and accepting. कि यहाँ पे poetess कह रही हैं कि वो reality को फेस करेंगी, हकीकत का सामना करेंगी, और ये कि हकीकत पसंद होते हुए हकीकत को एक्सेप्ट भी करेंगी, कबूल करेंगी। शी विल लीड ए सिंपल एंड हम्बल लाइफ, और वो सादा और एक आजिज़ाना ज़िंदगी गुजारेंगी। शी विल नॉट फील प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी एंड रिचेस, और वो अपनी खूबसूरती और जो है हेल्थ वेल्थ की वजह से जो है मगरूर नहीं होंगी। तो ये जो है ये थर्ड रेजोल्यूशन है राइटर का, वो खुद से 3 प्रोमिसेस करें। फॉर एग्जांपल जब भी कोई साल शुरू होता है तो उसमें हमने बहुत से साल हम इस दुनिया में गुजार चुके हैं, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें क्या कितना हमने ठीक किया, कितना हमने गलत किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन लें, खुद से प्रॉमिस करें कि अब मैंने जो है वो ज़िंदगी इस तरीके से गुजारनी है। सो इट इज़ रिलेटेड टू आवर ओन लाइफ एज वेल, सो वी ऑल्सो कैन अप्लाई दिस रोल इन आवर ओन lives. So in our lives, here our work is that to do the self analysis. हमने अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने डिसाइड करना है what we should do, and we must recognize, we must realize that what is the purpose of our life, why do we come in this universe, and how we should live a life. Okay, so all these things must be observed, and after that we can take the decisions, and according to these decisions we can improve ourselves, we can get rid of the evils, and we can adopt the good habits. So this was the theme of the poem. Hope so you will understand it, and if anything is not clear then you can ask from me. You can see the lecture, and after that you must read the lines. As you know,
दैट यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पोएम। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करते हो, जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब अगेन ब्रीफ बता देती हूँ। रेफरेंस में आप राइटर और पोएम का नाम लिखते हो। कॉन्टेक्स्ट में जो लाइंस दी गई होती हैं आप उनको एक्सप्लेन करते हो, उससे पहले क्या बात हुई, बाद में क्या बात हुई, वो आप लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप ओवरऑल व्यू दे सकते हैं पोएम का। सो ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू द पोएम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपने इस पोएम में वैसे ही कुछ ही लाइन है, बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत ही इजी और सिंपल है, बट इट गिव्स अस अ वेरी डीप मैसेज ना। तो आपने एटलीस्ट जो है इसका क्वेश्चन का आंसर लिखें या आप पोएम की एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें, तो आपने कोटेशन उसमें ऐड करनी है। इसकी टेक्सचुअल लाइंस जो हैं एटलीस्ट 4 आपने लाइंस इसकी ऐड करनी है। Okay girls, if you have any problem you can ask the question. Thank you so much and stay blessed.